Good morning, students. Today's our topic is push down automata. Myself Amit Goyal. This topic belongs to the subject theory of computation. You can refer some books over there. Number 1 is KLP Mishra. Number 2 is Hopkov Ullman Motwani, and you can refer Michael Sipser. Right. So this particular topic comes under the unit 4, push down automata. A PDA or push down automata can be formally described as 7 tuple, or we can say it is a 7 tuple machine. The tuples are Q, summation, tau, delta, Q naught, Z naught, F, where Q is the non-empty set of finite number of states. ठीक है? So we can say कि Q cannot be empty. We will have at least one state in the Q, and we will have a finite number of, why finite? Because we cannot have the infinite number of states, right? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर infinite number of states डाल देंगे, तो it should be finite number of states, where the summation is a non-empty finite set of finite number of input symbols या input alphabet. तो जब भी हम input alphabet लेंगे वो आपका समीशन में आएगा. Tau is the stack symbol, right? Or we can say the tape symbol. Delta is the transition function defined by Q into summation union epsilon into tau tends to Q into tau. Q naught is the initial state and Q naught belongs to the set Q, where Z naught is the initial stack top symbol. Yeah, we can say initial stack symbol. And Z0, Z naught belongs to tau. F is a set of accepting states, and F is the accepting state, or we can say the final states. So F belongs to also Q. Now here, just check over there. Let us suppose we have a stack over there having initial symbol Z naught. The symbol which comes here, that symbol will pop from the stack, right? Pop from the stack, and that particular tau that we will push into the stack, right? So ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो स्टैक के टॉप से पॉप होकर आएगा, और यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो स्टैक के टॉप पे पुश करेंगे हम. ठीक है? The following diagram shows a transition in a PDA from a state Q1 to Q2 labeled as AB tends to C. Now उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखते हैं. Initially we will have the state Q1, and after reading some symbol we are going to the state Q2. अब ये पहला सिंबल आपका A है. That symbol is the input symbol. ठीक है, जो आपका कहां से आएगा? टेप से आएगा. That symbol is the stack top symbol. जो भी टॉप पे होगा वो कॉमा करके B से लिखना है हमें. And tends to C, that symbol we will push into the stack. So this means at state Q1, if we encounter an input string A and symbol of the stack is B, then we pop B, push C on the top of the stack and move to the state Q2. तो A आपका इनपुट सिंबल आया, B टॉप से आया, स्टेट की Q1. ये प्रोसेसिंग होने के बाद हम विल रीच टू द स्टेट Q2. Q2 के अंदर चले गए और हमें एज ए आउटपुट क्या मिला? हमें C मिला, जो हमें स्टैक के अंदर डालना है. इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है ये. लेट अस सपोज दिस इज द फाइनाइट कंट्रोल, दिस इज द हेड. वी विल हैव द टेप ओवर देयर डिवाइडिंग इनटू द सेल्स. This finite control is attached with the stack having initial start symbol divided in cells also. So this is a stack, this is input tape, this is finite control, this is reading head, right?
सो वन बाय वन एक सिंबल आपका यहां से आएगा, एक सिंबल आपका यहां से आएगा, दिस इज द इनपुट टेप से आएगा एक सिंबल, एक आपका टॉप ऑफ द स्टैक से आएगा, ठीक है, और ये प्रोसेसिंग होगा, विल हैव सम आउटपुट ओवर देयर। इन द पीडीए वी विल हैव टू डिफरेंट वेज फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पीडीए, यानी कि आपको जब एक्सेप्टेबिलिटी होगी तो वो दो तरीके से होगी। वो पहली कौन सी है, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरी कौन सी है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेबिलिटी। तो इन द फर्स्ट फाइनल स्टेट एक्सेप्टेबिलिटी, इन द फाइनल स्टेट एक्सेप्टेबिलिटी a PDA accepts a string when or after reading the entire string the PDA is in a final state। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करने के बाद आपका जो भी स्टेट में आता है that is called the final state। and in the empty stack acceptability here a PDA accepts a string when or after reading the entire string the PDA has emptied its stack। तो स्टैक को यहाँ पे खाली करना है, एम्प्टी करना है, दैट इज वाई इसका नाम क्या है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या करना होता है, जो हमारा लास्ट सिंबल आता है टॉप ऑफ द स्टैक से जेड नॉट, वो हमें वापसी इसके अंदर डालना होता है। ठीक, और ये फर्स्ट केस के अंदर है, और सेकंड केस के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें ये जो हमारा स्टैक से जेड नॉट बाहर गया था, यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना है, यानी कि खाली एप्सिलॉन रहेगा यहाँ पर। तो बैक क्या जाएगा, एप्सिलॉन जाएगा यहाँ पर। तो जब जेड नॉट वापस जाएगा तो दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट एक्सेप्टेबिलिटी, और जब नल जाएगा इट इज कॉल्ड एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेबिलिटी। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं हम, एक तो आपका होता है एक्सेप्टेबिलिटी बाय एम्प्टी स्टोर, और वी कैन से null store, or we can say empty stack, और we can say null stack। ठीक है, empty stack और null stack। तो चारों में से कोई भी नाम आना बच्चों, तो हमें पहचान लेना है कि हमें क्या करना है, एक्सेप्टेबिलिटी किससे करानी है, एम्प्टी स्टैक से करानी है। ठीक है, नाउ let us try to understand with the help of the example कि एग्जाम्पल को हमें कैसे परफॉर्म करना है। Let us suppose we have example, construct a PDA that accepts L equals to a raised to power n b raised to power n such that n is greater than equals to 0। ठीक, तो how we will define that particular language? In this particular language we will have n number of A's followed by n number of A's followed by n नंबर ऑफ बीस, यानी कि पहले ए आएंगे और उसके बाद आपके उतने ही बी आएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक द ट्रांजिशन फॉर द पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब यहां पर आपका n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 हुई तो a की पावर 0, b की पावर 0, यानी इट मींस नल इंटू नल इक्वल्स टू नल, यानी कि नल आएगा। तो अगर इनपुट टेप से नल आता है और टॉप ऑफ द स्टैक से कौन आएगा, जेड नॉट आएगा, तो क्या होगा आपका क्यू नॉट जेड नॉट। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर यहाँ पे आपका नल नहीं है, एन की वैल्यू 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी है, तो वहां से आपका इनपुट टेप से ए आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक से जेड नॉट आएगा। और कंसेप्ट क्या रखना है हमें यहाँ पर, इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए कंसेप्ट क्या रखना है, ये जितने भी ए आएंगे हमारे, ये कुछ इस तरीके से होगा आपका, यहाँ पे n नंबर ऑफ एस, आफ्टर दैट फॉलोड बाय n नंबर ऑफ बीस। ठीक है, यहाँ आपका फाइनल कंट्रोल है, ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, यहाँ पर इनिशियली जेड नॉट। तो हमने पहले ए को रीड किया, तो जितने भी ए आएंगे इसको यहाँ डाल दिया, फिर इस ए को रीड किया, इसको भी स्टैक के टॉप पे डाल दिया, फिर इस तरीके से लास्ट ए को रीड किया, इसको भी स्टैक के टॉप पे डाल दिया। तो जितने भी ए हमारे आएंगे वो सारे के सारे स्टैक के अंदर जाएंगे, और जब हमारे पास बी आएगा तो जैसे एक बी आएगा, उस बी से पहला एक ए हम मैच करा के पॉप कर देंगे, फिर दूसरा बी आएगा, दूसरे बी से दूसरा बी मैच करा के पॉप कर देंगे, फाइनली एन नंबर ऑफ बी आएगा और उसको लास्ट वाले एन नंबर ऑफ ए से मैच करा के पॉप कर देंगे। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर,
सारे के सारे ए हमें कहाँ डालने हैं, स्टैक के अंदर डालने हैं, और जैसे बी आएगा इनपुट टेप से यहाँ पर तो उसे हमें पॉप करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 हमने क्या लिखा कि जब n इक्वल टू 0 है यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे नल आएगा, यहाँ जेड नोट आएगा, क्यू नोट जेड नोट। ठीक, अगर ए आता है तो ए जेड नोट यानी कि ये हमने कहाँ डाल दिया, स्टैक के अंदर डाल दिया। अब ये जब ए जेड नोट आएगा तो इनिशियली क्या था, ये यहाँ पे जेड नोट था, जेड नोट यहां से पॉप होके कहाँ गया, पीडीए में गया, और हमने क्या डाला है, इनपुट सिंबल ए था आपका, और हमने क्या डाला है, ए जेड नोट। तो यहाँ पे दोबारा क्या आएगा, यहाँ पे जेड नोट दोबारा आएगा और इसके टॉप पे ए आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद ए के बाद और भी ये हो सकते हैं, तो ए कॉमा ए, इनपुट टेप से भी आपका ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन है इस टाइम, वो भी ए है। ठीक है, तो सारे के सारे में कहाँ डालने हैं, स्टैक के अंदर पुश करने हैं, तो ये ए और ए आ गए, और भी ए होंगे, फिर ए और ए आएगा क्यू नोट स्टेट पर और ए डाल देंगे। ठीक है, सारे ए इसके अंदर डाल देंगे। जैसे हमारे पास इनपुट टेप से बी आएगा, जब सारे ए खत्म हो जाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा यहाँ पर। तो जैसे क्यू नोट स्टेट पर बी अगर आता है, इनपुट स्टैक ऑफ द टॉप पे कौन है, ए है, यहाँ से ए आएगा, बी कॉमा ए, जैसे मैच किया हमने क्या किया, नल कर दिया, यानी कि ए को हमने पॉप कर दिया, और क्या करेंगे, स्टेट को हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो पहला बी रीड करते इसको हम चेंज कर देंगे। अब इसके बाद और भी हो सकते हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेट क्या आपकी आ गई है, मान लो रूल नंबर 5 मान लीजिए इसको, यहाँ पर आप डेल्टा क्यू नॉट कॉमा क्यू1 कॉमा बी कॉमा ए, इसको सही कर देते हैं। Q1 कॉमा बी कॉमा ए, तो क्या करेंगे हमें इसके अंदर Q1 कॉमा नल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे जितने भी आपके ए स्टैक के अंदर गए थे वो सारे के सारे मैच होके पॉप हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब भी सारे खत्म हो गए, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, नल आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल जेड नोट बचेगा। तो यहाँ से अब जो आपका आएगा ये हो गया आपका R6 Q1 नल जेड नोट, तो वी विल रीच टू द फाइनल स्टेट Q2। और जेड नोट को हमने क्या किया, वापसी डाल दिया, यानी जब हम वापसी डाल रहे हैं जेड नोट को तो एक्सेप्टेंस कैसी हो रही है, बाय फाइनल स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर इसको 7 कर लेते हैं, Q1 नल जेड नोट आपका आया और आपने इस जेड नोट को वापसी नहीं डाला, यानी कि नल को वापसी डाला है। ठीक, इसको एम्प्टी कर दिया बिल्कुल, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो हमें ये चीज दो चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इसमें क्या होगा, बस एक आपका ट्रांजिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है एग्जाम में, अगर एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट आता है तो जेड नोट को वापसी डालना है, स्टैक के अंदर पुश करना है, और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक आता है तो क्या करना है, जेड नोट को हमें पॉप करना है और पुश कुछ नहीं करना है, यानी कि नल को पुश करना है। ठीक है, तो ये तो बन गया इसका ट्रांजिशंस। अब इसका बनाते हैं डायग्राम। लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड द इनपुट इज नल, दिस इज द इनिशियल स्टेट। अब इनपुट कैसे देना है, यहां पर हमें अगर ए आता है और जेड नोट आता है तो हम क्या कर रहे हैं, ए जेड नोट। यहाँ पे ए आया और यहां से जेड नोट आया तो हमने किया ए जेड नोट। ठीक है, और इनपुट स्टेट से अगर हमारा ए कॉमा ए आता है यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, ए कॉमा ए कहाँ पहुंच रहे हम, Q1 स्टेट पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इनपुट टेप से भी ए आया और स्टैक से भी ए आया, तो दोनों ए को हम कहाँ डाल रहे हैं, स्टैक के अंदर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका बी आएगा पहला। जब बी आपका आएगा यहाँ पर पहला तो क्या करना है हमें, बी कॉमा ए, और यहां से क्या आएगा आपका, इधर से आया बी, इधर से आया ए, तो क्या करेंगे, नल अब पुश करेंगे यहां पर हम। ठीक है, और
Q1 पे रहेंगे, और B अगर यहां से आपका आता है नल कॉमा Z0 ऑब्लिक Z0, तो कहां पहुंच जाएंगे हम? QF पे पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द दिस पर्टिकुलर PDA having the language A की पावर n B की पावर n such that n greater than equals to 0. Now second example is, हमने यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं हो गई, 1 हो गई है। लैंग्वेज इज सेम, बस n की वैल्यू हमने चेंज कर दी। यहाँ पर एक n की वैल्यू अब कम से कम 1 होगा आपका। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहली बार में हमने क्या किया था, अब यहाँ पे नल तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे नल नहीं आएगा, अब यहाँ पे पहले की तरह से, जैसे यहाँ पे पहले नल आया था, अब वो नल तो आ नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो पहला सिंबल क्या आपका? A ही आएगा। तो जैसे ही हमारे पास A आएगा तो हम क्या कर देंगे, वी विल चेंज द स्टेट, और इस A को कहां डाल देंगे? हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। अब Q1 पे और A होंगे, वो सारे के सारे जितने भी होंगे रिमेनिंग A, वो Q1 पे हम से स्टैक पे डाल देंगे। अब Q1 पे B आएगा फॉर द इनपुट टेप, और A आएगा आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। Q2 पे जाएंगे और नल कर देंगे। Q2 पे अगर और आते हैं हमारे पास A और होंगे, B आएंगे, आप मैच करेंगे और इसको नल करते रहेंगे। Q2 पर नल और Z0 मिलता है हमें, तो Q3 Z0 एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, और अगर Q3 नल करते हैं तो एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान का रखना है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 होने की वजह से क्या होगा, कम से कम एक इनपुट सिंबल आपका मिनिमम स्ट्रिंग क्या आएगी n = 1 के लिए? A B। ठीक है, तो जैसे हमें A मिला, तुरंत हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेट चेंज करनी होगी, स्टेट चेंज। ठीक है, Q0 टू Q1 पे जाना है, तो Q0 से लेके तुरंत Q1 पे जाना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर Q0, यहाँ पे इनपुट हमें क्या मिला? A, टॉप ऑफ द स्टैक से कितना आया? Z0, हमने A Z0 वापसी कर दिया और कहाँ पहुंच गए? Q1 स्टेट पर। अब Q1 स्टेट पे हमारे पास अगर और भी ये है तो A, A टॉप ऑफ द स्टैक से भी ये आएगा, और A हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, Q1 स्टेट पर ही रहेंगे, और अगर हमारे पास इसकी A खत्म होने के बाद B आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक से A आता है, तो यहाँ पर वापसी डालेंगे नल, और कहाँ पहुंच जाएंगे? Q2 स्टेट पर। और बाकी सारे के सारे जितने भी आपके B, A आपके आते हैं तो नल कर देंगे। उसके बाद अगर आपका नल आता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका आता है Z0, तो डालेंगे Z0, आ जाएंगे QF के ऊपर। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको हम ये ना लिख के ये लिख दें Q, Z0, नल, और QF पे पूछते हैं अगर, तो बाय एम्प्टी स्टोर या स्टैक, एक ही बात है। ठीक है, so this is the diagram of the for the language L equals to A की पावर n B की पावर n such that n greater than equals to 1। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर यहाँ पे B 2 हो, अभी हमने क्या किया, एक A था एक B था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, B के 2n कर दिया, यानी कि जितने A आएंगे उससे डबल B आएंगे। ठीक है, तो अब हम ये नहीं कर सकते कि A को तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास A होंगे सारे के सारे हम स्टैक में डाल देंगे। अब जैसे B आएगा उसमें A को पॉप नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इस A को पॉप किया तो क्या होगा, n नंबर ऑफ B आपके रिमेनिंग बच जाएंगे इनपुट टेप के अंदर, जो मैच नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो पहला B आपका आएगा, तो पहला A यहां से आएगा तो उसको रीड करके छोड़ देना है B को, और A को डाल देना है वापसी स्टैक के अंदर। जब दूसरा B आएगा तो हम इसको पॉप करेंगे। ठीक तो यहाँ पे इसके रूल्स देख लेते हैं। Q0 A Z0, Q1 A Z0, n की वैल्यू कम से कम 1 है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी स्टेट। तो A को हमने डाल दिया। अब Q1 पे A आए तो सारे A स्टैक के अंदर चले जाएंगे, इस वाले पर्टिकुलर से ऑल A's will push into the stack by rule number 2।
अब बी आएगा इसके बाद यहाँ पर बी ए। अब आपने क्या किया, जब पहले बार में क्या किया, यहाँ पे नल कर दिया था, अब यहाँ नल नहीं करना है। दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ पे ए को वापसी डालना है, कहां पर, पुश करना है स्टैक के अंदर, और दूसरा स्टेट को चेंज करना है। यहाँ पर Q1 से ये Q2 हो जाएगी आपकी। नाउ वी आर इन द स्टेट Q2, तो Q2 पे अगर B आया दोबारा से और फिर A आया तो Q3 पे जाएंगे, उसको हम नल करेंगे। अब Q3 पे आया, B आया, A आया, फिर Q2 पे पहुंचा दिया हमने और A को वापसी डाल दिया। अब Q2 पे अगर B और A आया, Q3 करके नल कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप से हमारे सारे के सारे A पॉप हो जाएंगे आपके स्टैक से। फाइनली Q3 स्टेट थी यहाँ पर हमारे पास, Q3 पर नल आएगा, जेड नोट आएगा, तो QF जेड नोट या QF नल बाय फाइनल स्टेट और बाय एम्प्टी स्टोर। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आपका चल जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कि क्या पूछा जा रहा है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम, L की पावर A की पावर n B की पावर 2n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, Q नॉट। ठीक, यहाँ पे आपका आएगा A, टॉप ऑफ द स्टैक से Z नॉट, इसे डालना हमें स्टैक के अंदर। जितने भी A आएंगे उसके बाद यहाँ पर A तो इनपुट टेप से, बाकी आपका स्टैक से आया, सारे के सारे डाल देंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपका फिर A खत्म होने के बाद B आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे A आएगा, तो हमें A को वापसी डालना है और स्टेट करनी है Q2। ठीक, अब Q2 पे आपका B आपका A और ये A आएगा, तो चले जाएंगे हम Q3 पर और यहाँ पे आपका हो जाएगा नल। ठीक, अब Q3 पे अगर आपका फिर से आपका ये आता है तो क्या करेंगे, B A ऑब्लिक A और फिर B A ऑब्लिक नल, और Q3 पे अगर हमें मिल जाता है नल Z नॉट, तो क्या करेंगे, Z नॉट या नल अकॉर्डिंग टू आवर एक्सेप्टेबिलिटी वी विल रीच टू द फाइनल स्टेट। तो दिस इज डायग्राम ऑफ द L की पावर L इक्वल्स टू A की पावर n B की पावर 2n। ठीक है, सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स। नाउ अब जो पीडीए होता है आपका केवल एक ही तरह का नहीं होता है, पीडीए आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है आपका डीपीडीए जिसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एक आपका होता है एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिन बच्चों ने डीएफए पर रखा है, एनएफए पर रखा है, उन्हें पता होगा क्या होगा एनपीडीए और डीपीडीए क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, a DPDA is similar but is also considered the top symbol on the stack when making a transition. For each combination of the state, input symbol and stack symbol, there is only one possible action. केवल और एक केवल आएगा in the case of the DPDA, और in the case of NPDA we can have more than one action, more than one action. ठीक है, properties of the DPDA are, DPDA have several important properties that distinguish them from the NPDA. Number 1 is uniqueness of the transition. जैसे हमने कहा कि हर ट्रांजिशन हर एक्शन यूनिक होगा। Every transition is unique, meaning there are no duplicate actions for the same combination of state, input symbol and stack symbol. ठीक, नंबर 2 predictability. The behavior of a DPDA is completely predictable as there is only one possible action for every situation. So we can predict. ठीक है, ease of implementation. DPDA are easier to implement than non-deterministic PDA, as there is no need to handle multiple possible transitions. They are the 3 properties of the DPDA. These are the few examples of the deterministic push down automata. A की पावर n, B की पावर n, A की पावर B की पावर 2n, WC WR. तो यहाँ पे आप देखोगे, ये तो हमने एक्सप्लेन किया था, A की पावर n, B की पावर n, and number of A's followed by n number of B's having n is greater than equals to 0. ये क्या आपका, this language consists of strings where the number of B's is twice the number of A's and the number of A's greater than 0. ठीक है, n greater than 0 है यहाँ पर। तीसरा क्या है, WC WR. So this language takes any strings made up of A's और B's, जो W के अंदर होगा। अगर आपका
W किससे बिलोंग कर रहा है, A, B के स्टार से। तो कोई भी स्ट्रिंग बन सकती है आपकी A और B के कॉम्बिनेशन से। C क्या है, इन द मिडिल है आपका, ठीक है, यहाँ पर C क्या है आपका, मिडिल के अंदर बिल्कुल, एंड फॉलोड बाय द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग WR। लेट अस सपोज W के अंदर आपने लिया AB A ले लिया, ठीक है, ये W, तो WR क्या बन जाएगा इसका, AA BA, तो WC WR क्या बनेगा इसका, ABA C AA BA, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम होता है कि कहाँ तक हमें ये सारे के सारे में क्या करने हैं, स्टैक के अंदर पुश करने, चाहे A आए चाहे B आए, और जब ये WR आएगा तो इसको इससे हमें मैच करके पॉप करा देने होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टैंड।